السلام علیکم ناظرین، ربی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی وزراء نے مجلسی قائدین کی موجودگی میں 80 کروڑ روپے لاگتی اے پی جے عبدالکلام فلائی اوور کا کیا افتتاح۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ایک اور تاریخی ترقیاتی کام۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں مصروف، عوامی خدمات کو یقینی بنانے کے اقدامات۔ کانگریس اور بی جے پی قائدین وزیر اعلیٰ پر بے جا الزامات عائد کر رہے ہیں، ٹی آر ایس رکن اسمبلی کا بیان۔ شادی کی حد عمر میں اضافے کے قانون کو مرکز فوری واپس لے، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے کیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ اور محمد محمود علی نے مجلسی قائدین بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کی موجودگی میں اویسی و میدانی جنکشن پر تعمیر کیے گئے فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا، جس کی لاگت 80 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ اس فلائی اوور سے مذکورہ سڑک پر واقع ٹریفک کی آمد و رفت میں سہولت ہوگی۔ واضح ہے کہ محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے ایس آر ڈی پی کے تحت مذکورہ فلائی اوور کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا تھا، جبکہ ٹی آر ایس قائدین اور مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस के 137वें यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए मुल्क की आवाम को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए अलहदा रियासतों की ज़रूरत को महसूस करते हुए 9 दिसंबर 2013 को तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस ने इख्तियार तो हासिल कर लिया, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम की तरक्की की बजाय सिर्फ अपने अरकान ख़ानदान की तरक्की को ही मुमकिन बनाया है। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर टीपीसीसी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि उन्हें धान की काश्त करने से कौन रोक रहा है, और अगर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धान की काश्त कर रहे हैं तो इस पर भी रेवंत रेड्डी को क्यों तकलीफ हो रही है। रेवंत रेड्डी क्यों बौखलाहट का शिकार होकर वज़ीर आला पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी और बी संजय को नामपल्ली बरादरान का खिताब देते हुए बताया कि दोनों कौमी पार्टियों के दफातर नामपल्ली में मौजूद हैं, जबकि उन्होंने रेवंत रेड्डी को ब्लैक मेलिंग का एम्बेसडर भी करार दिया। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर గారిని వారి ఫామ్ హౌస్ మీద మాట్లాడడానికి కోసం ఈ నాయకులకు ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ లెక్క ఈ నలుగురు ఐదుగురు నాయకులు పాడైనరు। కరీంనగర్ దిక్కేమో ఈ తొండి సంజయ్, ఈ నిజామాబాద్ దిక్కేమో ఈ గుండు అరవింద్, అటు దిక్కేమో రేవంత్ రెడ్డి, ఇటు దిక్కేమో ఈ బ్రోకర్ మల్లిగాడు, నలుగురు తయారై నాలుగు దిక్కుల ఏదన్నా ఒక మంచి పనికి నాలుగు దిక్కుల మంచిగా ఉండాలని ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ చూసుకుంటారు। అట్లాంటిది ఈ నలుగురు నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అడ్డగోలుగా తెలంగాణకు నష్టం జరిగే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి యొక్క దీక్ష గురించి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ గురించి, గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ మీద, కేటీఆర్ గారి కుమారు ఇమాన్షి మీద మాట్లాడడం తప్ప నిజమైన సమస్యలు వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నట్టు అంశాల మీద ఎక్కడ మాట్లాడతలేదు। నీతి ఆయోగ్ విషయంలో గతంలో 4వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం నీతి ఆయోగ్ తెలియజేసింది వైద్య విధానంలో 4వ స్థానంలో ఉన్న कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से सिंगरेनी कॉलोनीज के 4 ब्लॉक्स को हराज करने के मंसूबे की सख्त मजम्मत की और बताया कि उन्होंने इस मसले को पार्लियामेंट में वक्फे सिफर के दौरान पेश करते हुए अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि केसीआर और मोदी के दरमियान फिक्सिंग होने की वजह से वज़ीर आला मरकजी हुकूमत के हर फैसले की तायीद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिंगरेनी कॉलोनीज वर्कर्स को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेगी।
रियासत भर में मुलाजमीन और असातिज़ा ने जियो 317 से दस्तबरदारी अख्तियार करने और हुकूमत की जानिब से तरक्की और तबादलों को लेकर जोनल निज़ाम को बहाना बनाते हुए मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर मंगल के रोज़ धरने मुनज़्ज़म किए। इस सिलसिले में BRK भवन के पास असातिज़ा ने धरना देते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जियो 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करे। मोतमद अमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने हल्के असम्बली याक़ूतपुरे के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचलम के इलाक़े में एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बल्दी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद मोइन की जानिब से मज़कूरा कैंप का एहतमाम किया गया, जबकि डॉक्टर सिराज की निगरानी में डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों का तफसीली मुआयना किया और दवाएँ भी तजवीज़ की गईं। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब चिंचलम में आज हमारे मोइन साहब यहाँ के इंचार्ज, हमारे पार्टी के इख्तियारी के सदर, उनके तमाम साथियों ने मिलकर एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। डॉक्टर सिराज साहब की निगरानी में और हमारे मोइन साहब रैन बाजार के जो है ये मेडिकल कैंप के इंचार्ज, ये तमाम डॉक्टरों को फराहम किए हैं। तकरीबन हर बल्दी हल्के में कम से कम 3 कैंप कायम कर रहे हैं। तो ये तालाब चिंचलम का दूसरा कैंप है। एक कैंप बाकी है, अनकरीब उसका भी इंतजाम करेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर मौजूदा हालात में जो बीमारियों की वबा चल रही है उससे लोगों को महफूज रखने के लिए ये मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि गरीब लोग दवाओं से इस्तेफादा करें, अपना पूरा मुआयना करा लें। तो फ्री इनका टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ दवाएं भी दी जाएंगी यहाँ पर। इसमें आंखों का भी कैंप है, आंखों का भी मुआयना करें, नंबर जिसको अलाट है उनको नंबर भी दे रहे हैं, ऐनक भी दे रहे हैं। ये तमाम इंतजाम जो एरिया कॉरपोरेटर नसरीन डॉक्टर समीना बेगम साहबा की निगरानी में हो रहा है और इफ्तिताही मजालिस के तमाम लोग इसमें सरगर्म हैं। मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के जरिए आवाम से ख्वाहिश करूंगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पर वैक्सीन का भी अरेंजमेंट है, वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लिए हैं उनकी जिम्मेदारी कि फौरी वैक्सीन ले, पहला डोज दूसरा डोज दोनों से फारिग हो, ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। शेखपेट फ्लाईओवर का भी अनकरीब इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। ताहम ये इत्तला मिली है कि शेखपेट फ्लाईओवर पर उर्दू में तहरीर मौजूद नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराज फौरी फ्लाईओवर पहुंचे और मुताल्लिका हक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शेखपेट फ्लाईओवर की तामीर अमल में आई है। मुताल्लिका हक्काम ने मजलिसी कॉरपोरेटर को तयक़ुन दिया कि जल्द ही उर्दू में भी फ्लाईओवर पर तहरीर की जाएगी। कॉरपोरेटर राशिद फराज ने सिलसिले में तफसील बताई और कहा कि 1 जनवरी को मज़कूरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आएगा। यहाँ शेखपेट फ्लाईओवर जो 2.8 किलोमीटर्स का, यहाँ पर उर्दू को नज़रअंदाज किया गया था। इंट्रेंस के बोर्ड पर असद साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी इंटरेस्ट और खुसूसी तवज्जो की बुनियाद पर हायर ऑफिशियल से बात करके यहाँ पर उर्दू के लैंग्वेज को रखना ज़रूरी है। और कल से अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के अवाम का तहे दिल से वो लोग भी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुसूसी इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर उर्दू का बोर्ड आना ज़रूरी है बोलकर हबीब मिल्लत जिस तरीके से जुस्तजू लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी 2-4 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो बोर्ड भी फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब से फॉलोअप में है, बोर्ड बन चुका है, कोई दूसरे स्टेट से आने का था, बन के आ चुका भी है, बिल्डिंग हो रहा है। 2-3 घंटे में इंशाअल्लाह ताला आज की डेट में अल्लाह ने चाहा तो बराबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आर्डर्स पर, उनके तवज्जो पर, उनके खुसूसी इंटरेस्ट पर यहाँ पर आज बोर्ड इंशाअल्लाह ताला शेखपेट पे लग चुका होगा इंशाअल्लाह। कल हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर
ऑफिशियल से हबीब मिल्लत भी बात कर रहे हैं और मैं भी बात कर रहा था। उसके बाद वो लोग इमीडिएट अलर्ट हुए हैं और अपना काम पर सीरियस लेकर वो लोग काम कंटिन्यू कल से लगे हुए हैं। ये ब्रिज तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है फर्स्ट को इनाग्रेशन है। इंशाल्लाह शाम तक उर्दू के बोर्ड्स इंशाल्लाह ताला शेखपेट के एंट्रेंस पे और गच्ची बोली से जब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं रायदुर्गम के पास के एंट्रेंस पे भी लग चुके होंगे इंशाल्लाह। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आज़म मोदी से इस कानून को वापस लेने का भी मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक बालिग लड़की की शादी हो सकती है। मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले से अवाम खदशात का शिकार हैं। उन्होंने क़ाज़ियों से भी अपील की है कि इस सिलसिले में सरपरस्तों की रहनुमाई करें और उजलत पसंदी से गुरेज करें। मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि ये इस्लामी मामले में दखल ना दिए तो मेहरबानी आपकी, क्योंकि इस्लाम में क्या है, बच्चा और बच्ची बालिग होने के बाद निकाह पढ़ाना बोल के इस्लाम में है और हमारे कुरान और हदीस में है चीज़ ये। फिर भी उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट 18 साल बोल के जो है ना गवर्नमेंट ये करी, तो 18 साल के हिसाब से हम लोग जो है क़ानून को भी फॉलो करते हुए निकाह करने का काम 18 साल में निकाह करना बोल के क़ाज़ियों को इंस्ट्रक्शन पूरे इंडिया लेवल पे 18 इयर्स बोल के है। मगर अब फिर 21 इयर्स बोल के जो चल रहा ये गलत है ये, क्योंकि इसमें और भी बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 तक इंटर तक पढ़ा के शादी कर देते, जिम्मेदारी से माँ बाप बरी होना चाहते। अब वैसे लोग परेशान हो जाते जो 100 में 10% लोग हैं, वो लोग डिग्रियां कराते और पढ़ाते, 24 साल तक शादी नहीं करते, 23 साल तक नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। मगर इस्लाम के हिसाब से जो है बच्ची और बच्चा बालिग होने के बाद शादी करना बोल के है, गलत रास्ते पे नहीं जाना, निकाह करना बोल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमाए सो चीज़ है ये। मगर उसके बाद भी जो है ना ये चीज़ों को ये करते हुए फिर भी 18 साल बोले, ठीक है, बच्चे की उम्र 21 साल ऐसा चल रहा है, जैसे भी निकाह हो रहे ठीक है। और अब फिर एक नया निकाल के 21 साल बोल के एक शोशा छोड़ दिए हमारे मोदी साहब से अपील है मेरी, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इंडिया के, कि आप ये क़ानून को रुकाइए, इसको आप, मैं इसके ऊपर मजम्मत करता हूँ मैं, क्योंकि और भी जो है ना बच्चियां घरों में बैठ जाएंगे, 21 साल तक जो है माँ बाप पे बोझा रहेगा हो। जैसा बच्ची बड़ी हुई उसके बाद में कर देने का हुक्म है इस्लाम में, नहीं तो गलत रास्तों पे बच्चे जाएंगे तो उसका गुनाह भी मोदी साहब को होगा हो, ये जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो मेरी अपील है पूरे प्राइम मिनिस्टर से, पूरी गवर्नमेंट सेंटर से जो है, क्योंकि ये चीज़ को केसीआर साहब भी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये बिल पास हुआ नहीं, बिल आएगा पार्लियामेंट में, बिल पास होगा और हमारे राज्यसभा में होगा, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट को आएगा या असेंबली में पास होगा, जो भी होगा बात के हिस्से हो। अभी आवाम से मेरी अपील है, आप लोग अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अभी जो पहले का कानून है उसको फॉलो करिए और निकाह कराइए। आप लोग ऐसा जल्दबाजी में एक का एक कर दे रहे बोल के सुना भाई, एक एक काजी 20-20, 25-25 निकाह पढ़ा दे रहे। अल्लाह का कानून सबसे बड़ा कानून है, वो कानून ता क़यामत तक रहने वाला है, वो कानून को कोई रोक नहीं सकते, वो कानून को कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई पैदा ही नहीं हुए अल्लाह के कानून को तरमीम करने वाला, और उसकी कोई किताब बनी। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्ज़े से 412 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 20 लाख रुपये बताई गई है। वाज़ेह है कि मुसलसल दुबई से आने वाले पैसेंजर्स के कब्ज़े से सोना बरामद किया जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
سال 2001 سے آندھرا، تلنگانہ اور کرناٹک ریاستوں میں مختلف جرائم میں ملوث اے روی شنکر کو بھونگیر کورٹ کے سیشن جج نے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے، جبکہ 9,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم تقریباً 38 کیسز میں ملوث ہے، جبکہ خاتون کو دھوکہ دیتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کے الزام میں مذکورہ سزا سنائی گئی ہے۔ کمشنر پولیس مہیش بھاگوت نے رچاکنڈا پولیس کے سلسلے میں ستائش کی۔ ادارہ قدر ادب اور بزم حسان حیدرآباد کی جانب سے ممتاز ماہر تعلیم نامور ادیب و شاعر ڈاکٹر عقیل ہاشمی، سابقہ صدر شعبہ اردو، عثمانیہ یونیورسٹی کو 50 سالہ علمی، ادبی، تعلیمی و شعری خدمات کے اعتراف میں تہنیتی تقریب کا اہتمام زمریز آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ ادبی اجلاس کی صدارت پروفیسر نسیم الدین فریس نے کی، جبکہ پروفیسر مجید بیدار اور ڈاکٹر محسن جلگانوی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد آصف علی نے ڈاکٹر عقیل ہاشمی پر مضمون پیش کیا۔ کنوینر سید نوید جعفری نے مہمانوں و شرکا کا خیر مقدم کیا، جبکہ محمد ثناء اللہ انصاری وصفی نے شکریہ ادا کیا۔ محمد محسن جواد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ بعد ازاں غیر طرحی مشاعرہ ڈاکٹر منیر الزماں منیر کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مسرور آبدی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سہیل عظیم نے مشاعرے کی نظامت کی، جبکہ مدعو شعراء بشمول ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے اپنا کلام سنایا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی وزراء نے مجلسی قائدین کی موجودگی میں 80 کروڑ روپے لاگتی اے پی جے عبدالکلام فلائی اوور کا کیا افتتاح۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ایک اور تاریخی ترقیاتی کام۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں مصروف، عوامی خدمات کو یقینی بنانے کے اقدامات۔ کانگریس اور بی جے پی قائدین وزیر اعلیٰ پر بے جا الزامات عائد کر رہے ہیں، ٹی آر ایس رکن اسمبلی کا بیان۔ شادی کی حد عمر میں اضافے کے قانون کو مرکز فوری واپس لے، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے کیا مطالبہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔